Hello everyone, welcome to the class. So today we'll be covering the further questions of your December 2021 and June 2022 paper. I've already uploaded few videos and we have already covered few questions of computer networks, DBMS and discrete mathematics. And so in this video we'll be covering the other few questions of the same subjects, and then we'll be covering with the data structures and algorithm question. So all those who are new and who haven't joined the Telegram group, please join this group t.me/netreadigimento so that you can be updated about the questions, about the papers, about updates about the classes, and everything that is related to your net exam, right? And if you are new, so you can visit this website digimento.com, and you can also write us if you have any query. You can write us at this mail admin@gatelectures.com, or you can also call us and on these two numbers 9821876104 or 02 for any information about the course. ठीक है, अगर if you want a full time course, a live course, or whatever course you want to buy for, so you can definitely call us on these two numbers, or you can also write us the mail. And if you have any doubt related to your exam, related to your subject syllabus, you can join this Telegram group and you can contact me via Telegram. So you can see that this is the website, and over here we have 65 plus courses, so you can visit this website. We have courses not only for computer science but for net also. RRB ki, if you're preparing for RRB, you can also visit this website. We have course over here, and plus we have questions for GATE as well. All those who are preparing for the Feb exam, that exam we are having in Feb, I'll suggest you ki please, if you want, you can go for mini test series we have, and you can see what preparation you have done till now and what are the topics that require your expertise. Okay, and if you're preparing for your June 2023 paper, that is also going to be held very soon. You can go for this 3 months course or 6 months course, and according to your feasibility you can buy any course. Okay, there are other exams course also. That is, if you're preparing for machine learning, this is the course for machine learning. You can use this code welcome 40. Okay, you can get welcome 40 and you can get 40% off. There's ISRO exam course as well, DSSSB, NVS, KVS, PGT, TGT. अगर इन courses के लिए भी, इन exams के लिए भी you are preparing, you can definitely go for this. Okay, this is the Android app. You can also download this Android app, and इसके बाद you can also access the courses on this website, that is Digimento Education. तो app के through भी आप access कर सकते हो. So as you know, we have already covered this passage question. ये आपका CN का था, right? CN passage question. I hope you all must have seen this video. You all must have tried this question. This is a very important question. ठीक है, ये बहुत important है ये वाला question, because ये question आता है every time in this exam also. Along with these 5 questions, there were +1 question as well of this type only, where you have to use this formula 1/2a. ठीक है, so I'll suggest everyone कि please go through this question again and again. This topic is very very important. फ्लो कंट्रोल. ठीक है, तो इसमें ये फ्लो कंट्रोल को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या है आपका फ्लो कंट्रोल, देन व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आई हैव आल्सो एक्सप्लेन. सो प्लीज एवरीवन, जस्ट if you have not visited this video, please visit this video again so that you can be updated about this concept. I have explained the entire concept and you will be able to understand this entire concept very nicely. ठीक है, this is the center window size, efficiency का formula है ये आपका, then sequence numbers related to this we have done this also, right? Then this is the basic difference of the 3 stop and wait, ARQ, go back, and selective repeat. So I'll suggest everyone ki please go through. These were the questions that I was talking about. ठीक है, इसमें you can see that sequence number का question है, minimum number of bits required for sequence number. Then this was the questions, sequence number field, right? Efficiency, throughput, propagation delay, transmission delays. You can see that all these things we have done, and this is very important. So please, RS algorithm, again this was the second time this question was being asked with different values, but अगर आपको concept पता है तो you will be able to do every question, right? ये हो गया आपका. So these questions we have discussed. Okay, so this is your transport layer question we have done. We have also discussed this question, DBMS. I hope you have seen this question or this video also. DBMS वाला question भी हमने कर लिया, रिलेशनल algebra वाला. So please everyone, if anyone has any doubt, you can also write to me on Telegram, and I'll try my best to clear all your doubts.
So the last question that we discussed was this one. ये आपका सेमी ग्रुप का क्वेश्चन था, ग्रुप थ्योरी का, राइट? सो हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट इज योर प्रोबेबिलिटी. So there are three boxes. First box has 2 white, 3 black and 4 red balls. Second box has 3 white, 2 black and 2 red balls. Third box has 4 white, 1 black and 3 red balls. A box is chosen at random and 2 balls are drawn out of which one is white and one is red. What is the probability that the balls came from the first box? ठीक है? So try करो इसको and then I'll be discussing the concept of this question. Probability के questions एक आध हमेशा आते हैं. Every time you will see you will get either one or two questions from probability and mostly the questions are of same concept जो हम अभी करने वाले हैं. ठीक है? So if you will be able to understand this concept you can easily do this. And any question that you can find related to this particular type. But what is important is it is important कि ये समझ में आ जाए कि basically what question is asking from you. प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू, व्हाट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग फॉर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स व्हेन वी डील विद प्रोबेबिलिटी. So okay, so let's see one by one कि क्या कह रहे हैं. सबसे पहले they are saying that there are 3 boxes. Okay, so what we will do for a better understanding, we will draw 3 boxes. This is box 1, box 2 and box 3. Okay, so this is your box 1, box 2 and box 3. और वी कैन राइट इट एज ABC एज वेल, जो भी आप लिखना चाहो. अभी हम नंबर्स भी लिखेंगे, सो वी राइट इट एज ABC ओनली, जिससे कि हमें थोड़ा इजी आ जाए समझने में. So let's say this is box A, this is box B and this is box C. Now what they're saying, first box has 2 white, 3 black and 4 red balls. ठीक है? Then second box has 3 white, 2 black and 2 red balls. Okay, and third box has 4 white, 1 black and 3 red balls. ठीक है? Now they are saying that a box is chosen at random. So what they are saying, randomly they have selected any box. ठीक है? अब हमें नहीं पता कि what box they have chosen. They are saying just random एक selection किया और उस selection से they have chose the box. So सबसे पहले we will find out what will be the probability of selecting a box. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि what will be the probability of selecting any box या choosing any box, है ना? Because randomly choose किया गया है, कोई भी मतलब equal probability है. Random जब हम random word का use करते हैं तो इसका मतलब कि we are giving an equal chance to each and every place, everything. मतलब अगर मैं बोलूँ कि there are 5 people, ठीक है, and 5 people में I have randomly selected one person. So हर person के select होने की probability क्या हो गई? 1/5, है ना? अगर आप छोटा एग्जाम्पल लेके समझो इसे, सपोज देयर आर 2 people, this is person A and this is person B. Now I have to do this task. Now to complete this task I have to select any one person and I'll be selecting the person randomly. Randomly का मतलब कि A भी select हो सकता है और B भी select हो सकता है, but if I have to select only one. तो जब मैं randomly select कर रही हूँ, this means that कि the chance of being selected randomly is equal for A and B. तो 1/2 is the probability for A and 1/2 is the probability for B. तो similarly इस case में भी probability for choosing the box, selecting the box is 1/3. Yes or no? चाहे आप ये बॉक्स सेलेक्ट करो, ये बॉक्स सेलेक्ट करो, ये बॉक्स सेलेक्ट करो, किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो तो कोई भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी equal, that is 1/3. Now they are saying 2 balls are drawn. ठीक है? मतलब अब आपने तो कोई भी बॉक्स सेलेक्ट करा, आपने 2 बॉल्स ड्रॉ करी. एक कैसी है? एक वाइट कलर की है और एक रेड कलर की है. ठीक है? Now they are asking what is the probability that the balls came from first box. So basically आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन है कि probability that balls
selected from first box. Yes, इतना ही क्वेश्चन है ना। अब लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगी है वो इन बॉल्स पे लगी है। यस और नो? क्या कंडीशन है कि वी हैव ड्रॉन 2 balls रैंडमली बट द कलर इज वाइट एंड रेड। अब हमें ये भी नहीं पता कि पहले हमने वाइट सेलेक्ट की या पहले हमने रेड सेलेक्ट की। रैंडमली हमने 2 balls ले लिए एंड 2 balls में से एक वाइट है एक रेड है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली वो क्या है, अगर आप देखो क्वेश्चन है हमारा we have to find the probability that first box, या फिर हम इसको लिख सकते हैं balls are chosen from first box given that one is white and one is red. ये हमें फाइंड करना है। क्यों? अब आप क्या होगा, ये कैसे पता हमें? बिकॉज इफ यू सी ओवर हियर दे आर राइटिंग इट 2 balls are drawn out of which one is white one is red. What is the probability that balls came from first box? मतलब जो हमने balls choose किए, जो 2 balls हमने select की हैं, ये दोनों first box है। तो मतलब we have to find the probability of first box, that the balls are selected from first box given that the balls are first is white and one is red. ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें एक वर्ड होता है गिवन। ये एक वर्ड है गिवन दैट। ठीक है, जब भी ये वर्ड गिवन होगा गिवन दैट, ठीक है, इसका मतलब क्या है? गिवन दैट वर्ड का मतलब है यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो हो रहा है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो किस में लगती है? जो अप्लाई होती है बेस थ्योरम में। ठीक है, ये अब आप लोग कहोगे कि मैम क्वेश्चन में तो कहीं गिवन दैट है नहीं, तो हमने क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहे हैं वो कि यू हैव टू टेल कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बॉल्स आपने सेलेक्ट करी हैं, जो वाइट और रेड कलर की बॉल्स आपने सेलेक्ट करी हैं वो फर्स्ट बॉक्स से सेलेक्ट हुई हैं। वरना वो मेंशन भी क्यों करते हैं? वो सिंपली बोलते हैं कि 2 balls are drawn, what is the probability that they came from first box, but they have clearly mentioned कि 2 balls are drawn, one is white and one is red. तो ये हमें कंडीशन गिवन है कि एक वाइट है एक रेड है। अब हमें ये पता लगाना है कि दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल राइट in a formula method. So what we will do first, this part will be termed as A and this part will be termed as B. ठीक है, so probability of A given that B, मतलब कि B फिक्स है, B हो चुका है, अब आपको फाइंड करना है A है ना। इसको हम लिख सकते हैं probability of A given B. What is the formula for this? The formula is probability of B given A multiply by probability of A divide by probability of B. So now we will write what? Now we will write probability of, what is probability of B given A? It is probability of selecting one white and one red given that box A is chosen. ठीक है, this is your this. What is P of A? P of A is probability of choosing box A. And what is probability of B? Probability of selecting one white and one red ball. अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे we are
सेलेक्टिंग वन वाइट एंड वन रेड, क्या गिवन है कि बॉक्स ए सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कि हमने फर्स्ट बॉक्स को चूज किया है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो हमने भी कैलकुलेट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/3 है ना, यही हमने कैलकुलेट किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉक्स इज 1/3, इक्वल चांस है तीनों के। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन वाइट एंड वन रेड, सबसे पहले व्हाट वी विल डू, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। आई टेक अ डार्क कलर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेलेक्टिंग वन वाइट एंड वन रेड, अब वन वाइट एंड वन रेड दोनों से हो सकती है ना। सो बॉक्स ए में वाइट है 2, टोटल बॉल्स कितनी है, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल कितनी है 7, और यहाँ पे टोटल कितनी है 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग white balls 2/9, yes, and probability of setting black balls 3/9, white balls की probability 3/7, black balls की probability 2/7, और red की कितनी है 4/9, red की 2/7, white की probability 4/8, black की 1/8 and red की 3/8। ये समझ में आ गया ना कैसे किया। टोटल बॉल्स 9 है, 9 में से 2 वाइट है, तो वाइट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/9, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नाउ वी हैव टू टेक वाइट एंड रेड, सो 2/9 यस, यही है प्रोबेबिलिटी, वन वाइट एंड वन रेड, या नहीं, ठीक है। तो इसको जब करोगे क्या आएगा, ये हमने मार्क कर ली हर बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक, 2/9 3/9 4/9, 3/7 2/7 2/7 4/8 1/8 एंड 4 5 6 7 8। कुछ गड़बड़ हो रही है, वन वाइट एंड वन रेड, ठीक है। ठीक है, तो अब लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दिस पार्ट, b बाय a, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग b बाय a मतलब कि क्या है कि b आपका है वन वाइट एंड वन रेड, सो व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, वाइट 2 में से, ठीक है, 2 टोटल बॉल्स हैं। जब हम ये फाइंड कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, गिवन दैट ए मतलब कि बॉक्स आपका क्या है फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में से वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2c1, यस और नो, 2c1 है, मल्टीप्लाई बाय 4c1 डिवाइड बाय 9c2। अभी कैसे आया देखो, वाइट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/9, ये टोटल है, टोटल में से, बट अगर मेरे पास 2 वाइट हैं और 2 में से मुझे एक सिलेक्ट करना है तो आई बी यूजिंग दिस 2c1 कॉम्बिनेशन सिलेक्टिंग, जब हम सिलेक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो 2c1, और रेड का क्या हो गया 4c1, क्योंकि हम सिलेक्ट तो एक ही कर रहे हैं। आई होप यू ऑल नो कि इफ दिस इज NCR, सो दिस N बेसिकली मीन्स टोटल कितनी है एंड R मीन्स यू चूजिंग कितनी, आप चूज कितनी कर रहे हो। तो अगर 4 वाइट बॉल्स हैं या 4 रेड बॉल्स हैं, उसमें से आप 2 सेलेक्ट कर रहे हो, तो n की वैल्यू हो गई 4, r की वैल्यू हो गई 2, दैट इज 4c2, ऐसे, ठीक है।
So this 2c1, this is 2, फॉर्मूला पता होगा NCR का, n factorial upon r factorial n minus r factorial. So 2 factorial, एक में सॉल्व होता है 2 factorial upon 1 factorial 2 minus 1 factorial. So this will be 2 factorial, इसको आप 1 factorial 1 factorial, तो दिस विल बी 2 factorial only, दैट इज 2 into 1, तो 2. ठीक है, या तो आपको आ गया 2c1 को सॉल्व करने का तरीका. नेक्स्ट आई टेल यू 4c1. आई टेल यू वन ईच सो दैट आपको पता होगा कैसे करोगे. सपोज नाउ यू हैव टू फाइंड 4c1. सो 4 factorial upon 1 factorial 4 minus 1 factorial, 4 factorial 1 factorial 3 factorial, 4 into 3 factorial 1 into 3 factorial. So 3 and 3 will get cancelled, so 4 आएगा. जब भी आप ये 1 के संग कर रहे हो, जब r की वैल्यू 1 है तो जो ये वैल्यू वही आता है आंसर. ठीक है, दिस विल बी 2 into 4 upon 9c2 is 9 factorial upon 2 factorial into 7 factorial. So this will be 2 into 4 upon 9 into 8 into 7 factorial upon 2 into 7 factorial. So 7 factorial cancel, and this is 4, 4, 4 cancel. This is 2 by 9. So probability of choosing a ball, that is your white and red balls, one white and one red ball from bag A is 2 by 9. ठीक है, ये समझ में आ गया. 2 by 9 कैसे आया? Probability of selecting. ठीक है, फिर then we will have probability of balls from bag B. ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमें फाइंड करना है probability of B selecting one white and one red. तो one white and one red कैसे होगा? Probability of B by A plus probability of B by B plus probability of B by C. That is probability of selecting one white and one red given that bag is A. Probability of selecting one white and one red given that bag is B. Probability of selecting one white and one red given that bag is C. Total probability यही हुई. तीनों, जब आप तीनों बैग में से आप जो भी probability आपकी आ रही है वो आप ऐड कर रहे हो, वो आपकी टोटल आ जाएगी कि आपकी वन वाइट और वन रेड बॉल को सिलेक्ट करेंगे, टोटल probability क्या है. This will be what? Probability of B by B. This will be 3c1 multiplied by 2c1 upon 7c2. That is 3 by multiplied by 2 upon 7 factorial, 2 factorial into 5 factorial, 3 by 2 upon 7 into 6 upon 2, 3, this is 2 by 7. Probability of B by C is 4c1 into 3c1 upon 8c2. इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 by 7. सो अब B by A, तो ये तो आ गया कि probability of selecting ball white and red from bag A. अब bag A को select करने की probability भी लगाओगे, तो that will be 1 by 3 into 2 by 9 plus 1 by 3 into 2 by 7 plus 1 by 3 into 3 by 7. ये वो वैल्यूज हैं जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किए. So this will give you, this will be equal to 59 by 189. अब हम ये चीज इक्वेशन नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 1 में अप्लाई करते हैं. सो B by A क्या हो गया आपका? B by A, B by आपका ये है. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी, अब हम इसको कहाँ अप्लाई करेंगे? फॉर्मूले में. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B इज इक्वल टू 2 by 9 multiply by probability of A. Probability of A is 1 by 3. 1 by 3 divide by 59 upon 189. जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप, so you will get 14 upon 59, that is 0.237. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई. ठीक है, कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, सिंपली वी वर गिवन कि हमने दो बॉल्स ड्रॉ कर लिए हैं, वन वाइट एंड वन रेड, एंड वी हैड टू फाइंड कि वो हमने जो ड्रॉ किए हैं वो ड्रॉ किए हमने फर्स्ट बॉक्स से. सो व्हाट वी डिड, वी अप्लाइड बेस थ्योरम.
दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो हमने इसके सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, सबसे पहले उसके हमें फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन वाइट एंड वन रेड गिवन दैट बॉक्स सेलेक्टेड इज ए. तो उसके लिए हमें क्या करना था, उसके लिए हमने किया ये चीज, that is 2C1, that is out of two white balls we're selecting one ball, out of 4 red balls we're selecting one ball. Total balls थी 9 बैग ए में, तो 9C2 सॉल्व करके आ गया 2/9. ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि बैग ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/3. फिर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज सेलेक्टिंग वन वाइट एंड वन रेड. तो ऑब्वियसली जब आपके पास 3 बैग्स हैं तो तीनों में से कुल प्रोबेबिलिटी तो टोटल निकालने की, टोटल वन वाइट और वन रेड को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है. अब इस पे तो कोई कंडीशन है नहीं, इस पे तो आपकी कोई कंडीशन गिवन नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे, तो हो सकता है कि आप 1 से निकालो, 2 से निकालो, 3 से निकालो. तो तीनों को ही आपने पहले कैलकुलेट किया कि अगर वन वाइट और वन रेड ले रहे हैं तो बैग बी में से क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वन वाइट और वन रेड बैग सी से क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और उसको फिर बैग सी जो प्रोबेबिलिटी थी 1/3 उससे मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया, फिर इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ दिस कंसेप्ट कैन बिकम अ लिटिल बट ट्रिकी एट टाइम्स. तो इसीलिए बेस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो बेस थ्योरम पढ़नी है आप सबको, ठीक है. दिस इज व्हाट इज बेस थ्योरम इज, यही बेस थ्योरम है. ऐसे एक आध क्वेश्चन आई विल चेक एंड वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, तो आप इजीली कर लोगे. और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिक एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है, ट्राई करो. इजी है, कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया कि व्हाट यू हैव टू डू इन दीस क्वेश्चंस. इसको आप एंड और उसको लिख लो ऐसे, तो दिस कैन बी रिटन एज पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार प्लस पी क्यू. So what you will do, as you can see from this and from this I can take q common, so this will be p bar plus p, plus from this I can take p common, that will be q bar plus q. This will be 1, so q plus p या फिर p plus q. So p plus q is this one, this is what, this is p bar plus q, this is p plus q bar, this is p plus q, and this is p bar plus q bar. So when you will select, it will be option number 3, that is p plus q. Easy question है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना. नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये थोड़ा सा गलत भी है जो लिखा हुआ है इसमें, कुछ मिस्टेक है इसमें. अब आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन आपका मार्क हुआ था कि नहीं हुआ था. मैंने सॉल्व किया अभी, मैंने देखा, चेक किया अभी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें थोड़ी सी गलती है, बट कोई नहीं, विल ट्राई टू डू इट एंड एक्सप्लेन यू कि क्या पे थोड़ी गलती लग रही है मुझे, ठीक है. सो तब तक आप ट्राई करो इसे, फिर आई डिस्कस दिस क्वेश्चन. ये आपका LPP का है, आई होप ये आपको पता होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग का, लीनियर प्रोग्राम का है ये.
ओके, सो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मैक्सिमाइज ये आपका प्राइमल पार्ट है, ठीक है, और डुअल क्या होता है, ठीक है। सो ये हमारा जो पार्ट है दैट इज मैक्सिमाइज वाला, ठीक है। जब हम इसका मिनिमाइज पार्ट, आपने डीएलडी में पढ़ा होगा कि अगर a प्लस बी है तो उसका डुअल क्या होता है ना, डुअल ऑफ लिटरल्स एंड ऑल, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, एलपीपी के कंसेप्ट में क्या होता है कि इफ आई एम गिवन अ प्रॉब्लम दैट इज अ प्राइमल प्रॉब्लम and if I want to calculate its dual, so first what I'll do, I will change the function type. अगर वो maximize है, या अगर वो maximize है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा minimize में, ठीक है। सेकेंड आई विल चेंज द वेरिएबल्स, यहाँ पे z है, यू कैन सी यहाँ पे w आ गया, यहाँ पे x1 x2 x3 है, यहाँ पे y1 y2 आ गया, ठीक है। थर्ड व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द टाइप ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, यहाँ के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वी विल चेंज दीज कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। सो इसको करने का एक तरीका होता है, व्हाट इज द वे, आई टेल यू, लेट मी राइट इट लाइक दिस, कि सपोज ये मेरा प्राइमल है, प्राइमल है मेरा मैक्स z with terms of variable x is equal to c and this is also with terms of variable x, ठीक है। c मेरे कुछ इक्वेशन है जो with terms रिस्पेक्ट टू x है, फिर ये मेरी कंस्ट्रेंट्स हैं सब्जेक्ट टू लेट्स से a x equal less than equal to b एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये आएगा लेस देन इक्वल टू b। तो जब हम इसका डुअल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब आप इसका डुअल कैलकुलेट करोगे तो व्हाट ऑल चेंजेस यू विल डू, सबसे पहले तो ये मैक्स हो जाएगा मिन, सो मिनिमम ऑफ, अब ये z है, ठीक है, दिस विल बी z विद अ वेरिएबल w, नाउ द वेरिएबल्स हैव चेंज एंड वी विल राइट इट इन विद रिस्पेक्ट टू w, कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हो। नाउ दिस c एंड b, ठीक है, ये जो आपके यहाँ इस कंस्ट्रेंट्स की जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, दीज इक्वेशंस, इनके जो राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है दैट विल बी ओवर हियर, ओके। उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब कि अगर दीज आर ऑफ दिस टाइप सो ट्रांसपोज विल बी, इट विल बिकम अ रो, यस दिस इज व्हाट ट्रांसपोज इज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल w, फिर सब्जेक्ट टू a ट्रांसपोज, अगेन नाउ दिस वाज द थिंग, ये जो आपका ट्रांसपोज हो जाएगा मतलब a आपका ये था, ये वैल्यूज, ठीक है, मैं बताऊंगी भी आपको। a ट्रांसपोज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल w विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू c ट्रांसपोज, जो आपका c था यहाँ पे वो ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, एंड w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ कैलकुलेट। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन में व्हाट इज c, c क्या है यहाँ पे, c है आपका 5 12 एंड 4। इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन c is 5 12 and 4, okay, then this is equation 1, ये आपकी equation 1 है, ठीक है। ये values this and this, these are your b, okay, then 1x1 2x2 1x3 2x1 minus 1x2 plus 3x3, these are your a। So when you will change this into dual, maximize will turn into minimize, z has become w, ठीक है, equal to b transpose, now original b was this matrix of this type 10 8, so what it become, it became 10 came over here and 8 came over here with a change in variable, so I have written variable as y1, now you will be thinking why y1 and y2, so basically when you will be converting your primal to dual, equations will be given the name of variables, so equation 1 is y1 and equation 2 is y2, इसीलिए टू वेरिएबल्स लिए, क्यों, यहाँ पे आप सोचो देयर आर थ्री वेरिएबल्स x1 x2 x3, but here we are taking only two variables y1 and y2, why we are doing this, because in this primal part we are having only two equations, that is
x1 to x2 x3 to x1 x2 x3. We are having only two equations, इसीलिए we are taking only two variables. This 10 will come with y1 because this first equation is known as y1, and 8 will come with y2. This second equation is known as y2. ठीक है, so we took this transpose, देखो क्या. अब यहाँ पे क्या है, A transpose. Now what is, if I try to find what is A matrix over here, if you see 1 2 1 2 -1 3, this is what is A. ठीक है, so what I'll do now, this y1 is related to, now this will become, I'll take the transpose. So 1 1 y1 plus 2, so transpose, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई. This will become your second equation and this will become your third equation. With first equation you will write 5, with second equation you will write 12, and with third equation you will write 4. So I think ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने किया है. जो C है आपका वो ऐसे है मैट्रिक्स. Now C transpose will become 5, 12 and 4 like this. So I think ये आपको समझ में आ रहा होगा कि how we are converting this primal to dual. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ठीक है, 1y1 plus 2y2 is great because अब मैं बताया साइन चेंज हो जाएगा इसमें, ये लेस देन था ग्रेटर हो जाएगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो मैं आपको बता देती हूँ. ये आपकी प्राइमल प्रॉब्लम है. ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो है ये. ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे इन्हें इक्वल टू दे दिया है, बट दे शुड हैव गिवन लेस देन इक्वल टू, तभी आप ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन व्हाट द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन वाज कि they have given equal to instead of this less than equal to, because जब आप ये इसको करोगे तो अब इसका डुअल कैसे निकालोगे. ठीक है, डुअल निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्राइमल प्रॉब्लम को what we will do, this we have to remove this less than inequality. ठीक है, I'll write it over here. If problem has inequality, remove it. ठीक है, अब रिमूव कैसे करोगे. Now I know that x1 plus 2x2 plus x3. Now this will become equal to 10. Now when it will become equal to, this value is less than 10. This means कि I have to add something to it so that it 10 की equal हो जाए. अगर मतलब ये है 1 plus 4 plus 3 less than equal to 10 है, तो इसका मतलब यही है that I have to add some value to this part so that it will become equal to 10. yes or no, यही मतलब है. अगर आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है 1 plus 4 plus 3 is less than equal to 10, this simply means that you have to add something to this equation so that it becomes equal to 10. So what we did over here, we added another variable that is x4. So x1 plus x2 plus 2x2 plus x3 plus x4 equal to 10. तो आप देखो अगर यहाँ पे you can see x1 plus 2x2 plus x3 plus x4 equal to 10. इक्वल हो गए यहाँ पे. We basically have to remove this inequality. इक्वेशन नंबर 2 में inequality नहीं है तो it will be 0x4. x4 अगर लिखा है this means 1x4. x4 is having a value. बट अगर हम x4 के आगे 0 लगा दें this means that it is null. So इसलिए हमने 0 लगाया. Similarly यहाँ पे 5x1 plus 12x2 plus 4x3 plus 0x4. अब इसका you have to find the dual. बात समझ में आई. So यहाँ जो ओरिजिनल क्वेश्चन था इसमें जब आप करते तो यहाँ पे the problem was कि यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड नहीं करते. ऑब्वियसली है ना, क्योंकि इक्वल टू चल रहा है, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड नहीं करोगे तो कंडीशंस अप्लाई नहीं हो पाएंगे. अब आई विल टेल यू कैसे होगी. ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि इक्वेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ. हाउ विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन फॉर्म, वी हैव टू बेसिकली रिमूव द इनइक्वालिटी. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इट्स डुअल. ठीक है, कैसे किया हमने डुअल. अच्छा एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके,
Just give me a second. ठीक है. अब सपोज ये हमारी इक्वेशन है, तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, मतलब अगर इफ वी डोंट कन्वर्ट, इफ वी डू नॉट रिमूव दिस इनइक्वालिटी, ठीक है. सो सेम वही मेथड है आपका, क्या, this 5 12 and 4 will become over here. So this is your equation y1, this is your equation y2. So 8 10 y1 plus 8 y2, 10 y1 plus 8 y2, ठीक है. Now this is 1, so 1 x1 के 1 y1 plus 2 y2 greater than equal to 5, 2 y1 minus y1 y2 greater than equal to 12, x3 y3 and x3 and 3, ठीक है. अब आप सोचोगे how this equation came. So if you see in this original question also, matlab if we do not remove this inequality, this equation y1 is telling us that I have to add one variable to this, otherwise this equation will not work. Yes or no? जिस वजह से हमने x4 ऐड किया, because this is less than equal to, so we added this one y1 plus 0 y2. Now if you see over here, there is no condition over here. Why there is no condition? Because y1 y2 can be anything, so that is why y1 and y2 are unrestricted. But when as soon as we apply this, जैसे हम ये अप्लाई कर देते हैं कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी, अगर आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस फर्दर, यहाँ पे इसको आप इग्नोर ही करो. बेस्ट थिंग इज कि आप इसको इग्नोर ही कर दो, इस वाले स्लाइड को. आई रिमूव दिस स्लाइड बिकॉज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन ओनली. आप सिर्फ इसी पे ध्यान दो, आप इसी इक्वेशन पे ध्यान दो. Yeah, now we have, what we have done, we have added this x4 to this part. Okay, we have removed the inequalities and we have added this. Now we have to do what? If you see over here, 10 y1 8 y2 then 1 x1, ये सब सही है. यहाँ पे ये क्या आया, यहाँ पे what happened was y1, this was c 1, I'll write it like this, a, ठीक है, ये आपका a है ना, a को लिखो 1 2 1 1, 2 minus 1 3 and 0, right? So ये आपका हो गया 1 y1, this one 1 y1 plus 2 y2 is greater than equal to 5, 2 y1 minus 1 y2 greater than equal to 12, 1 y1 plus 3 y2 greater than equal to 4. Now this is 1 y1 plus 0 y2 greater than equal to 0. This means y1 is greater than equal to 0. So यहाँ से ये कंडीशन आ गई कि y1 is greater than equal to 0, because अब जो हमारा c है उसमें है 5 12 4 and 0. So 5 12 4 and 0. So ये कंडीशन आ गई. Now for y2 we don't have any condition with y2, so that is why y2 is unrestricted. So इसीलिए हमने ये जो क्वेश्चन आया है हमारा, इसी में हमारा आया है ऑप्शन नंबर ए, y1 is greater than equal to 0 and y2 is unrestricted. So इसमें से आपको ये चीज अगर समझ में आ गई ना, दिस पार्ट की हाउ वी आर डूइंग द कन्वर्जन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. एंड एवरी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो, इक्वालिटी को रिमूव कर देना, इनइक्वालिटी को, ठीक है. अब इसमें आपकी इनइक्वालिटी दे हैव ऑलरेडी रिमूव्ड, है ना. अगर हम ट्राई करें कि इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रिमूविंग द इनइक्वालिटी, हम कैसे करेंगे इसे? लेट्स ट्राई. इनइक्वालिटी को रिमूव करके कैसे कर सकते हैं ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड. तो हम इसे डुअल में कन्वर्ट करते, सो सेम 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 आता है ना. इक्वेशन आती नहीं और कोई, मतलब y1 y3 के लिए कोई इक्वेशन बचती नहीं. और अगर आप ध्यान से देखो इसे, सो दिस वुड हैव बीन 10 y1 8 y2, ठीक है, करेक्ट. दिस विल बी 5 12 4, नथिंग एल्स. हमारे पास कुछ बचता ही नहीं. तो ये थोड़ी प्रॉब्लम में थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पे. दे शुड हैव रिटन ओवर हेयर लेस देन इक्वल टू 10, तभी हम इसको इक्वल सही से सॉल्व कर पाते. दिस वॉज अ लिटिल प्रॉब्लम, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या जो भी मिस्टेक रही हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन. पीडीएफ देते वक्त आई रिमूव दिस पार्ट, जो भी मैंने क्रॉस मारा है, आई रिमूव दैट.
because that is little थोड़ा confusing है, so I'll remove this part over here. Okay, next question. Again, very good question. Conservative 2PL is a deadlock-free protocol. Thomas Wright rule enforces conflict serializability, and timestamp ordering protocol ensures serializability based on the order of transaction timestamps. Try करो इसे. आई होप कि वो प्राइमल वाला पार्ट समझ में आ गया होगा. इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम डू टेल मी ऑन टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन बता देना. व्हेनेवर वी विल बी हैविंग अ लाइव क्लास आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन. ठीक है, बट आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम होनी चाहिए बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. बट अगर फिर भी कुछ पॉइंट समझ में ना आए, यू कैन डेफिनेटली राइट टू मी ऑन टेलीग्राम और यू कैन टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन एज वेल. सो ये जो कंसेप्ट आपका स्टेटमेंट 1, दिस इज बेस्ड ऑन योर फेज लॉकिंग, है ना, लॉकिंग पे बेस्ड है. सो इस कंसेप्ट को आपने पढ़ा होगा. तो आप लोगों को पता होगा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक. जब हम लॉकिंग को प्रेफर करते हैं, बात करते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक्स. क्या क्या होते हैं पता है किसी को? वन इज शेयर्ड लॉक, दैट इज एस, एंड वन इज एक्सक्लूसिव लॉक. यस, पढ़ा है ना आप लोगों ने, दैट इज एक्स. शेयर्ड लॉक जो है वो सिर्फ रीड ओनली आइटम्स पे लग सकता है ना, मतलब वेन एवर यू वॉन्ट टू रीड एनीथिंग यू कैन अप्लाई शेयर्ड लॉक. बट एक्सक्लूसिव जो है वो रीड एंड राइट दोनों पे लग सकता है. इफ आई वॉन्ट टू राइट और रीड एनी आइटम आई कैन अप्लाई एक्सक्लूसिव लॉक. ठीक है, नाउ this is basic locking. When I'm just simply applying this is known as basic locking. ठीक है, so इसका क्या है, इसमें it do not, when I apply this basic locking, it do not guarantee serializability. ठीक है, so in order to have serializability, what we have done, we have introduced the concept of 2PL, that is two phase locking. Now what is two phase locking? Two phase locking basically means that there are two types of phases जिसमें आप locking को apply कर सकते हो. If you see this diagram, you can clearly see that we have first phase, that is growing phase, and another one is shrinking phase. तो growing phase में you can apply the locks. देखो, obtain a lock. Obtain a lock is up arrow. So this is obtaining a lock, obtaining a lock, obtaining a lock. ठीक है, and after a time, after a point of time, a time point will come, that is lock point. जब उसके बाद you can only release the lock. So basically क्या मतलब है यहाँ पे, that after lock point you cannot apply lock, you can only remove the locks जो आपने apply कर रखे हैं पहले. So growing phase means that you can apply the locks, and shrinking phase means you can remove the locks only. तो growing phase में सिर्फ आप lock लगा सकते हो और shrinking phase में सिर्फ आप lock हटा सकते हो. So this is two phase locking. So now two phase locking basically it ensures serializability. ठीक है, अब ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, टू फेज लॉकिंग से सीरियलाइजेबिलिटी हो गई, बट नॉट डेडलॉक फ्री. डेडलॉक का कंसेप्ट इसमें है अभी भी. ठीक है, क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दे आर सेइंग वेरी क्लियरली दैट कंजर्वेटिव 2PL इज अ डेडलॉक फ्री प्रोटोकॉल. अब यहाँ तक हमने डील किससे किया, यहाँ तक हमने बात की है आपकी 2PL की. नाउ दिस 2PL इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है, जो आपका 2PL है इट इज ऑफ थ्री टाइप. One is your strict 2PL. Okay. Another one is rigorous 2PL. And the last one is conservative or static 2PL. ठीक है,
Now what is strict 2PL? Strict 2PL it says that whatever exclusive locks जो आपके पास है, ठीक है, all X locks, that is your exclusive locks, can be released after your transaction commits. मतलब कि जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक्स आपने लगाए, ठीक है, एक्स लॉक्स एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव लॉक्स जो आपने लगाए हैं, दे कैन ओनली बी रिलीज्ड आफ्टर योर ट्रांजैक्शन हैज कमिटेड. व्हाट डज रिगरस से? रिगरस सेज दैट ऑल एक्स एंड शेयर्ड, सारे लॉक्स, ठीक है, अब इसमें भी डेडलॉक है, नॉट deadlock free. All exclusive and shared locks can be released after transaction commits. ठीक है, रिग्रेस थोड़ा और ज्यादा हो गया. स्ट्रिक्ट 2PL कह रहा है कि ओनली एक्स लॉक्स जो है वो सब तभी हटेंगे जब ट्रांजेक्शन कमिट होगा. रिग्रेस कह रहा है कि एक्सक्लूसिव के साथ साथ शेयर्ड लॉक्स भी तभी हटेंगे जब ट्रांजैक्शन कमिट होगा. बट अगेन दिस इज नॉट डेडलॉक फ्री, ये भी आपका डेडलॉक फ्री नहीं है. ठीक है, ये आपका हो गया strict 2PL. This is your strict 2PL. If you can see this, that सारे locks are applying and as soon as transaction has ended, your locks are released. This is strict 2PL. This is conservative 2PL. Conservative 2PL कहता है कि, I'll write it over here. Conservative 2PL says that transaction will lock all the items beforehand, मतलब before the starting, before the start, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले ही जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सारे आइटम्स को लॉक कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अगर क्लियरली, आर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट ऑल द लॉक्स एट द बिगिनिंग, इफ इट डज नॉट गेट देम इट डज नॉट स्टार्ट. मतलब कि अगर मान लो मेरा ट्रांजैक्शन टी है, उसे 3 आइटम चाहिए A, B and C. Now what it will do in conservative 2PL, in conservative 2PL it will wait for all these 3 items. Suppose A और B उसके पास हैं but it is waiting for C, so it will not start. ठीक है, it will start when it will get all the 3 items all together. This is what is conservative 2PL. The transaction requests all the locks at the beginning and if it does not get them it does not start. If it gets the resources and start, it will complete. मतलब वो तब तक रिसोर्सेज को छोड़ेगा नहीं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, बट वो तब तक स्टार्ट भी नहीं हो जब तक उसे सारे रिसोर्सेज ना मिल जाए. सो कंजर्वेटिव 2PL इज डेडलॉक फ्री. ठीक है, दिस इज डेडलॉक फ्री. सो ये जो स्टेटमेंट 1 है आपका, ये ट्रू हो गया. नाउ वी हैव थॉमस राइट रूल एनफोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ गया, थॉमस राइट रूल. सो व्हाट इज इट? आपने पढ़ा होगा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. ठीक है, क्या है ये? टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल स्टेट्स दैट इफ रीड ऑफ एक्स, मतलब RIX, इसका मतलब पता है, होप ऑल यू नो, ट्रांजैक्शन I is reading item X. ठीक है, इसका मतलब ये RIX. So timestamp ordering protocol states that if RIX, that is transaction I is reading X and transaction J is writing X and they are conflicting operations. मतलब conflict मतलब read write, write read, write write. If they are conflicting operations, then read will be processed before W if and only if timestamp of transaction I is less than transaction J timestamp. मतलब क्या है कि अगर ये आपका TI है और ये आपका TJ है, ठीक है, now this is write X and this is read X and write X. ठीक है, now this is a conflicting operation.
कि पहले क्या हो. सो दे आर सेइंग कि इफ टाइम स्टैम्प मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट है टोटल टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन. इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई, अगर इसका टाइम स्टैम्प इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे, देन रीड ऑफ एक्स विल process पहले, then write of x will process. I hope this is clear. What is timestamp ordering says? Timestamp says that if there are two conflicting operations, then based on the timestamp of the transaction, we will decide the order of execution. Okay, so TS of TI denotes timestamp of transaction TI. एक होता है RTSX, ये चीज अलग है, ठीक है. This is different and this is different. R underscore TSX denotes the read timestamp of data item X. X का read timestamp और X का write timestamp आपका ये हो गया, ठीक है. Timestamp ordering protocol ensures serializability since precedence graph इसका हमेशा कैसा होगा, ऐसा. Obviously जिसका timestamp छोटा है वो पहले रन कर जाएगा एज कम्पेयर टू जिसका ट्रांजैक्शन टाइम बड़ा है, ठीक है. तो अगर आप स्टेटमेंट नंबर 3 देखो, वो क्या कह रहा है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी. यस, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, थॉमस राइट रूल एनफोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. तो अब हमें देखना है कि थॉमस राइट रूल क्या है. ओके, सो Thomas Wright rule provides guarantee of serializability order of a protocol. It improves the basic timestamp ordering algorithm. कैसे? अगर बेसिक थॉमस राइट रूल क्या है कि इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टी, ठीक है, ट्रांजैक्शन टी है, उसका टाइम स्टैम्प इज लेस देन द टाइम स्टैम्प ऑफ रीड आइटम ऑफ एक्स. मैं बता रहा यहाँ पे आपको, ये आपका है रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम एक्स, ठीक है. तो अगर टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन टी इज लेस देन रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम एक्स, देन ट्रांजैक्शन टी इज अबॉर्टेड and roll back. Similarly, if timestamp of t is less than write timestamp of x, then don't execute write item operation of transaction and continue processing. मतलब ये basic rules है आपके. So इन rules की वजह से you can guarantee serializability with the help of Thomas Wright rule. तो इसीलिए जो आपके statements हैं, जो आपके तीनों statements हैं वो true हो जाते हैं. That is, अच्छा okay sorry, statement 1, 2 and 3, all the 3 statements are true. ठीक है. सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. कंजर्वेटिव 2PL मैं आपको पूरा समझा दिया कि मतलब बेसिक में आपको समझा दिया कि 2PL क्या है, PL फेज लॉकिंग क्या है, स्ट्रिक्ट 2PL में क्या डिफरेंस है, रिग्रेस में क्या है, ठीक है. टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दी, थॉमस राइट रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. अब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक वी हैव कंप्लीटेड कंप्यूटर नेटवर्क की PYQ 2022 के, DBMS के वी हैव कंप्लीटेड एंड डेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वी हैव कंप्लीटेड. इसके बाद दिस इज व्हाट, ये PDF में आपको आई गिव यू आफ्टर, मतलब विद इन 1 or 2 आवर आई गिव यू द PDF, ठीक है. PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद एल्गो, डेटा स्ट्रक्चर एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम के PYQs. सो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है. एंड यस, 2022 का एग्जाम होने के बाद जब हम वील कंप्लीट दिस, सो डेफिनेट टाइम बचेगा, तो उसके बाद वील कवर 2019 PYQ, बिकॉज बीच के PYQs मैंने कवर कर लिए हैं, बट स्टिल आई सी टू इट कि क्या अगर कुछ रह गया है, ठीक है. और अगर ये भी कर लिया हुआ तो वील सी कि और कौन से ईयर का वी कैन कवर, ठीक है. सो वी हैव डन टिल नाउ टिल हियर. अब इसके बाद आपका बच रहा है ये एल्गो, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वील डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. तो किसी का भी कोई भी डाउट हो, प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे लिख सकते हो कोई भी डाउट अगर है आपका, या आप कमेंट सेक्शन में भी यू कैन राइट इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है. एंड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, या कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू राइट ऑन टेलीग्राम एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू दी बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दैट कैन बी गिवन फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, ठीक है. So that's it. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. Take care.